Welcome, guys. Today we are going to learn accounting standard 13 in accounting for investments. Okay. What are the learning outcomes? What are the various forms of investment? अपने को सीखने को मिलेगा. Classification of investment. How to compute the cost of investment. Current investment, long-term investment, investment properties. Then disposal of investment. Reclassification of investment. Disclosure requirement as per the standard. ये चीजें अपने को अल्टीमेटली सीखने को मिलेगा. सही बात है. कैन यू स्टार्ट दैट थिंग सो दैट आई विल हैव टू. नो इशू. उसको बाद में रहने दो. ओके. थैंक यू. इंट्रोडक्शन. Standard deals with accounting for investment in financial statement of enterprise and related disclosure requirement. Shares, debentures and other securities held as stock in trade, that is for sale in the ordinary course of business, are not investments as defined in this standard. क्या बोला है? Exactly. Shares, debentures and other securities held as stock in trade. मतलब मेरी इन्वेस्टमेंट कंपनी है. मेरी इन्वेस्टमेंट कंपनी शेयर्स डिबेंचर्स खरीदेगी और बेचेगी. तो उस टाइम पे वो शेयर और डिबेंचर मेरे इन्वेस्टमेंट में नहीं आएंगे. दैट विल बी माय ऑर्डिनरी ट्रेडिंग गुड्स. ओके. However, the manner in which they are accounted for and disclosed in the financial statement is quite similar to that applicable in respect of current investment. Accordingly, the provisions of the standard, to the extent that they relate to current investments, are also applicable to shares, debentures, and other securities held as stock in trade, with suitable modifications as specified in this standard. कोई दिक्कत? पक्का समझा? This standard does not deal with. यह standard की चीज के साथ deal नहीं करता. The basis for recognition of interest, dividend, and rental earned on investment, which are covered by AS9, revenue recognition. Then operating or financial lease. क्यों वो वहाँ पे cover होगा? Investment on retirement benefit plans and life insurance enterprises. Employee benefits देखेंगे अपन. Mutual fund, venture capital fund, and or the related asset management companies, bank, public financial institution form under a central or state government act and so declared under Companies Act 2013. इसको भी ये applicable नहीं होगा. कोई दिक्कत? Great. Definition of the term used in the standard. Investment. Fair value, market value. Investment are asset held by enterprise for earning income by way of dividend, interest and rentals, for capital appreciation or for other benefits to investing enterprise. Asset held as stock in trade, inventory are not investment, जो अपन ने देखा. So what is investment? Investment are asset held by an enterprise for earning income by way of dividend, interest, rentals or for capital appreciation or for other benefits to the investing enterprise. मेरी enterprise क्या है? Investing enterprise है. मैंने investment किया है. Yes or no? किस चीज़ के लिए investment करता हूँ मैं? To earn interest, dividend, rental incomes, other benefits and capital appreciation. So ये 5 व्यू के साथ अगर मेरी इन्वेस्टमेंट होती है तो उसको क्या बोलेंगे अपन? इन्वेस्टमेंट. अगर इन्वेस्टमेंट करना और बेचना मेरा धंधा होगा तो बेटा दैट विल बी ट्रीटेड एज स्टॉक इन ट्रेड. ओके, ग्रेट. Fair value is the amount for which an asset could be exchanged
between a knowledgeable willing buyer and a knowledgeable willing seller in an arm length transaction. Under appropriate circumstances, market value or net realizable value provides an evidence of fair value. क्या समझा? बायर भी विलिंग है, सेलर भी विलिंग है, बायर भी नॉलेजेबल है, सेलर भी नॉलेजेबल है। ऐसे सिचुएशन में अगर दोनों में वो असेट को इंटरचेंज करने के लिए कुछ ट्रांजैक्शन होता है तो उसकी जो वैल्यू फिक्स की जाती है उसको क्या बोलेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू. That will definitely depend upon either market value or net realizable value provided as evidence of fair value. कोई दिक्कत? खत्म. Market value is the amount obtainable from sale of an investment in open market, net of expenses necessarily to be incurred on or before disposal. मार्केट वैल्यू मतलब मैं मेरा आइटम लेके मार्केट में बेचने जाऊंगा ओपन मार्केट में, तो मुझे जो भी पैसा मिलेगा आफ्टर गिविंग कमीशन टैक्सेस वगैरह वगैरह नेट, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? मार्केट वैल्यू. कोई दिक्कत? देन फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. एंटरप्राइज होल्ड इन्वेस्टमेंट फॉर डाइवर्स रीजन. फॉर सम एंटरप्राइज इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इज सिग्निफिकेंट एलिमेंट ऑफ ऑपरेशन and assessment of the performance of the enterprise may largely or solely depend on the reported results of this activity. Some investments have no physical existence and are represented merely by certificates or similar document, that is shares, while other exist in a physical form, building. For some investment an active market exists from which a market value, that is fair value, can be established. For other investment an active market does not exist and other means are used to determine the fair value. अभी बिल्डिंग की fair value निकालना है. ऐसा इजीली मार्केट में अवेलेबल है क्या? वो नहीं. शेयर्स की है ना, इसकी है क्या? नहीं है, तो उसको निकालना पड़ेगा. क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट. करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. Current investment is an investment that is by its nature readily realizable and is intended to be held for more than 1 year from the date on which, not more than 1 year, यहाँ पे लिख देता हूँ लेस देन 1 year. अगर स्पैन रहा तो उसको क्या बोलते हैं अपन? करंट इन्वेस्टमेंट. यस और नो? अरे is intended to be held for not more than 1 year from the date on which such investment is made. The intention to hold for not more than 1 year is to be judged at the time of purchase of investment. Long term investment, other investment than a current investment. सही बात है ना? Further classification, current long term investment should be specified in the statute governing the enterprise. In absence of statutory requirements, such further classification should disclose wherever applicable. Investment in government trust, government or trust securities, shares, debenture, bond, investment properties, other specifying nature. ये फर्दर क्लासिफिकेशन है. यस. कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करोगे? बोलो. अरे इंक्लूसिव ऑल ब्रोकरेज फीस, टैक्सेस, जो भी दिया है तुमने, आया ना? द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्लूड एक्विजिशन चार्जेस, मतलब खरीद की कीमत, सच एज ब्रोकरेज फीस एंड ड्यूटी, सब इंक्लूड, सब इंक्लूड होगा. क्यों? तेरे हाथ में कितने को गिरा? cost to you. Example, X Limited in the long-term deposit, invest in long-term deposit worth 200 lakhs. On 1st April 2022, it incurs brokerage cost 1 lakh. To be able to make the investment, the value of the investment on 1st April 2022 is 201 lakhs. 200 तूने किए और 1 लाख रुपए तूने जो खर्चा किया. If an investment is acquired or partly acquired by issue of shares or other securities, the acquisition cost is the fair value of the securities issued. The fair value may not be necessarily be equal to the nominal value or par value of the securities issued. Definitely वो ऊपर भी रह सकता, नीचे भी रह सकता. par value मतलब face value. face value से ज़्यादा भी रह सकता, कम भी रह सकता. खत्म.
If an investment is acquired in exchange or part exchange for another asset, the acquisition cost of an investment is determined by reference to the fair value of the asset given up or the fair value of the investment acquired, whichever is more clearly evident. Please tell me about this paragraph. Hmm. तो उसके एक्विजिशन कॉस्ट क्या है इज डिटरमाइंड बाय रेफरेंस टू द फेयर वैल्यू ऑफ द असेट गिवन अप जो अपन ने असेट छोड़ा याद आ रहा तेरे को पीपी में हाँ जो असेट अपन ने सैक्रिफाइस किया उसका वैल्यू क्या है तेरा असेट लेने के लिए मैंने मेरा असेट सैक्रिफाइस किया ना तो तेरे वैल्यू से ज्यादा मेरे को पहला क्या देखना है मेरा वैल्यू यस और नो गिवन अप और द फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड अगर वो नहीं तो सामने वाले की फेयर वैल्यू whichever is more clearly evident पीपीए में चीज हुआ था interest dividends and rental receivables in connection with an investment are generally regarded as income being in return on the investment however in some circumstances such inflows represent a recovery of cost and do not form part of income क्या समझा देखो अगर मैंने कोई इन्वेस्टमेंट किया है उससे अगर मुझे कोई इंटरेस्ट मिलता है डिविडेंड मिलता है या रेंटल मिलता है मतलब बिल्डिंग में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ ना शॉप्स में भी कर सकता हूँ शेयर्स में भी कर सकता हूँ तो मुझे अगर कोई रेंटल भी मिलता है तो दैट विल बी ट्रीटेड एज माई इनकम बेसिकली बट कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस में उसको इनकम नहीं बोलते दैट हैज बीन रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द असेट यस और नो समझा क्या दैट इज रिकवरी ऑफ कॉस्ट एंड नॉट डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ इनकम फॉर एग्जाम्पल unpaid interest has accrued before the acquisition of an interest bearing investment मतलब कम इंटरेस्ट तूने इंटरेस्ट के साथ सामने वाले की इन्वेस्टमेंट खरीद ली अभी तक इंटरेस्ट क्या हुआ है एक्रू तेरे पास जमा नहीं हुआ है तो खरीदने के बाद अगर वो इंटरेस्ट आ रहा है तो नेचुरली दैट विल रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट एंड इज देयरफॉर इंक्लूडेड इन द प्राइस पेड मतलब वो इंटरेस्ट क्या है प्राइस पेड में इंक्लूड हुआ है मैं तेरा सेट 1,000 रुपये में खरीद रहा हूँ जिसके ऊपर 20 रुपीज का इंटरेस्ट ड्यू है मतलब मिलने वाला है अभी वो 1,000 रुपये में वो 20 रुपीज क्या है बेटा इंक्लूडेड है तो अल्टीमेटली वो 20 रुपये जब मिलेंगे तो मेरी कॉस्ट क्या होगी बेटा इन्वेस्टमेंट की 980 समझा नहीं समझा तूने कोई असेट खरीदी किया उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट ड्यू है जो तेरे को मिलने वाला 8 दिन में 15 दिन में तो तेरी जो असेट को तूने कीमत दिया है उससे वो जो आने वाला है उसको क्या मारेंगे अपन रिकवरी मारेंगे so that interest is going to reduce the value of this investment rather than treating it as a income क्योंकि वो इसके असेट के प्राइस में इंक्लूड किया गया था मतलब नेट प्राइस 980 और 20 रुपया इंटरेस्ट दिस इज कम इंटरेस्ट कंसेप्ट कम डिविडेंड कंसेप्ट वैसे ही एक्स इंटरेस्ट एक्स डिविडेंड मैंने आपको इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग का टॉपिक सिखाया था याद है उसमें ये सारी चीजें थी for the investment the subsequent receipt of interest is allocated between the pre-acquisition and post-acquisition period done na post-acquisition raha to it will be income the pre-acquisition portion is deducted from cost pre-acquisition का जो भी portion है that will be deducted from cost post-acquisition income है when dividends on equity are declared from pre-acquisition profits a similar treatment may apply if it is difficult to make such an allocation except on arbitrary basis the cost of investment is normally reduced by dividend receivable only if they are clearly represent a recovery of part of the cost मतलब अगर वो clearly distinctly दिख रहा है कि that is a recovery of cost तो ही अपन उसको क्या करेंगे बेटा cost में से लेस करेंगे खत्म when right shares offered are subscribed for the cost of right shares is added to carrying amount of the original holding if rights are not subscribed
for but are sold in the market, the sale proceed are taken to the profit and loss statement. क्या समझा? पढ़ के बताओ. एग्जैक्टली वो भी अपना असेट है. क्यों? तू मेरा पुराना शेयर होल्डर है और मैंने राइट इशू के अंडर तेरे को राइट दिया है कि तू 5 शेयर के बदले में 2 शेयर खरीद सकता है, 3 शेयर खरीद सकता है, 1 शेयर खरीद सकता है ऑन सम डिस्काउंटेड प्राइस. तो वो जो तेरा हक है वो भी क्या है तेरा असेट. ये सुन ना, देखो, व्हेन राइट शेयर्स आर ऑफर्ड आर सब्सक्राइब, मतलब तुमने क्या किया, सब्सक्राइब फॉर द कॉस्ट ऑफ राइट शेयर इज एडेड टू द कैरिंग अमाउंट ऑफ द ओरिजिनल होल्डिंग. इफ द राइट्स आर नॉट सब्सक्राइब बट सोल्ड इन द मार्केट, बेच दिया अपन ने, द सेल प्रोसीड आर टेकन टू द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. क्यों? वो असेट की कीमत में अपन रिकवरी नहीं मारेंगे, वो सेपरेट इनकम दिखाएंगे. However, where the investment are acquired on come right basis, now it's important, and the market value of the investment immediately after becoming X right is lower than the cost for which they were acquired, it may be appropriate to apply the sale proceed of right to reduce the carrying amount of such investment to the market value. समझा क्या? नहीं समझा, मेरे को मालूम है. Please read or tell me. Hmm? बोलिए. Boss, can you close that curtain? Thank you. बोलो. मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदने के बाद मुझे राइट इशू मिला, तो बेटा अगर मैंने वो राइट बेच दिया तो दैट विल बी इनकम. तो सेपरेट एसेट ट्रीट होगा ना वो. उसकी कॉस्ट में इंक्लूजन करने की जरूरत नहीं मेरे को. पर अगर खरीदती टाइम में मैं कम राइट खरीद रहा हूँ, तो दैट राइट हैज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ दिस एसेट. तो डेफिनेटली मुझे रिड्यूस करना पड़ेगा टू फाइंड आउट द बेसिक कॉस्ट. यस और नो? अगर मैं बाहर बेचने जा रहा हूँ तो अगर मैं राइट परफॉर्म कर रहा हूँ तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो परफॉर्म करने के बाद जो भी मेरा शेयर आएगा वो फेयर मार्केट वैल्यू को ही यहाँ पे इंक्लूड होगा, मेरी कॉस्ट को. तो उसका बेनिफिट उसके अंदर क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा. लेकिन मैं राइट अगर सेपरेटली बेचने जा रहा हूँ, मैं नहीं खरीद रहा, मैं मेरा राइट बेच रहा हूँ, तो डेफिनेटली क्या होगा, इनकम रहेगा ना वो. पर यहाँ पे इट विल बी रिकवरी. वही वही है ना, वही है. देख, परचेस के बाद अगर तेरे को राइट मिलता है तो बात ही अलग है, वो पोस्ट वाली चीज होगी. अपन कम राइट की बात कर रहे हैं ना. कम राइट मतलब खरीदते टाइम वी आर परचेसिंग विथ राइट. कम मतलब इंक्लूसिव, एक्स मतलब एक्सक्लूसिव छोड़ के. नीचे एक है ना ट्री डायग्राम दिया है, मस्त है. क्या ऐड करते क्या लेस करते, पसंद आया मेरे को. ऐड में क्या बेटा, एक्विजिशन चार्ज, फेयर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज इशूड, fair value of the asset given up, or fair value of the investment acquired, whichever is more clearly evident. Cost of rights share subscribe, मतलब अरे जो भी कॉस्ट पे खरीदेगा वही ऐड होगा ना. मैंने 100 शेयर्स खरीदे, उसके बदले मेरे को 10 का राइट इशू मिला, मैंने वापस वो 10 शेयर खरीदे, तो उसकी जो कॉस्ट है वो ऐड हो जाएगी और मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएंगी 110 की. ये एक्स की बात कर रहा हूँ.
अगर मैंने वो राइट बेच दिए तो कुछ नहीं, 100 शेयर की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज इनकम, सेपरेटली ट्रीटमेंट। ये अगर कम राइट रहा तो वो लेस होगा। नीचे देखो ना, देख, रिड्यूस इंटरेस्ट रिसीव्ड फॉर प्री एक्विजिशन पीरियड, dividend received for pre-acquisition period only if they clearly represent a recovery of cost। मतलब कम डिविडेंड रहा तो आया ना। देन लास्ट देखो, इफ इन्वेस्टमेंट आर acquired on cum right basis and the market value of investment immediately after their becoming ex right is lower than the cost for which they were acquired, then the sale proceed till carrying amount become equal to the market value। क्या समझा? अपन ने कम राइट बेसिस पे शेयर्स खरीदे, तुमको मालूम है राइट इशू के बाद क्या होता है, वैल्यूएशन डाउन होता है शेयर का, डाइल्यूशन ऑफ इक्विटी। ईपीएस एमपीएस देखा ना तुमने, नेचुरली शेयर का वैल्यूएशन क्या होने वाला है, डाउन होने वाला है पक्का। सो इमीडिएटली आफ्टर बिकमिंग एक्स राइट इज लोअर देन द कॉस्ट विच दे वेर एक्वायर्ड, कॉमा उसके बाद क्या है, देन सेल प्रोसीड टिल कैरिंग अमाउंट बिकम इक्वल टू द मार्केट वैल्यू, दिस इज रिड्यूस्ड। मतलब क्या, इसका मीनिंग समझाओ। हम्म, नहीं जाती ना, जा सकती हो बात अलग है, तो लॉस होगा तेरा। बट आज की तारीख में तू ऊपर का पैराग्राफ पढ़, ये ट्री डायग्राम के पहले का पैराग्राफ, तेरे को समझेगा, तेरे आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस है, काफी डिफरेंस है। मैं पढ़ के बताता हूँ। However, where the investment are acquired on cum right basis and the market value of the investment immediately after becoming their ex right is lower than the cost for which they were acquired। यहाँ तक समझा सबको? अभी कॉमा के आगे का पढ़ता हूँ। It may be appropriate to apply the sale proceeds of right। क्या बोला? It may be appropriate to apply the sale proceed of right। मतलब तुम्हारे को जो राइट मिला था वो राइट तुम बेच रहे हो, और उसके जो सेल प्रोसीड्स है उसको कहाँ पे अप्लाई करना है, टू रिड्यूस द कैरिंग अमाउंट ऑफ सच इन्वेस्टमेंट टू द मार्केट वैल्यू। समझा क्या? खत्म। नीचे वो, नीचे के सेंटेंस में मीनिंग पूरा नहीं आ रहा था ट्री डायग्राम में, यहाँ पे मीनिंग तुम्हारा पूरा आ गया। मैंने जो बोला, तूने कम राइट खरीदा, अभी जब वो एक्स राइट होगा नेचुरली उसका वैल्यूएशन क्या होने वाला है, डाउन। क्यों? डाइल्यूशन ऑफ इक्विटी होगा ना, डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप होगा। मेरे पास 1 लाख शेयर थे, अब 1,10,000 हो जाएंगे, नेचुरली मेरा इनकम उतना ही रहा, ईपीएस कम हो जाएगा, तो मार्केट वैल्यू क्या होने वाला है, मेरा कैरिंग अमाउंट नीचे आने वाला है। क्यों आने वाला है? बिकॉज ऑफ दैट राइट। और मैं वो राइट अगर बेच रहा हूँ, एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट किया रहता तो मेरे भी शेयर्स बढ़ते थे, तो उसकी जो कॉस्ट है वो इंक्लूड होती थी किसमें, मेरे पुराने शेयर्स में। लेकिन मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ क्या, नहीं, तो जो मैं वो राइट बेच रहा हूँ उससे जो प्रोसीड आने वाला है वो मेरे एग्जिस्टिंग शेयर की कीमत से मैं कम करूंगा, ताकि मेरी शेयर की कीमत और वो मार्केट वैल्यू बाद में आने वाली वो क्या हो जाए। ऐसा बोलना है, कोई दिक्कत?
श्योर? वापस पढ़ के तो इट मे बी अप्रोप्रिएट टू अप्लाई द सेड प्रोसीड्स ऑफ राइट, मतलब जो राइट मैंने खरीदे थे वो राइट बेच के जो भी सेल प्रोसीड आएगा उसको मैं अप्लाई करूंगा। कहां पे अप्लाई करूंगा? टू रिड्यूस द कैरिंग अमाउंट ऑफ सच इन्वेस्टमेंट टू द मार्केट वैल्यू। समझा क्या? खत्म। यही चीज समझती नहीं बच्चों को, क्या कम और एक्स। कम का क्या करने का, एक्स का क्या। देखो प्री एक्विजिशन रहा तो नेचुरली अपने को कॉस्ट से रिड्यूस करना है, पोस्ट एक्विजिशन रहा तो वो तो फिर इनकम है। मैंने शेयर्स खरीदे, उसके बाद कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, अब वो मेरा इनकम है। मैंने शेयर खरीदने से पहले ही कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया था, सामने वाले ने मेरे को बोला था कि बेटा ये शेयर ये रेट में खरीद रहा है, उसमें ये डिविडेंड तेरे को ये तारीख को मिलने वाला है। समझा क्या? पक्का? 100%? आगे, carrying amount of investment, the carrying amount of current investment is lower of cost and fair value। बोला बोला था कि नहीं? कैरिंग अमाउंट क्या रहती है? लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू। अगर कॉस्ट कम रही तो, फेयर वैल्यू कम रही तो, कॉस्ट और एनआरवी। valuation of current investment on overall global basis is not considered appropriate, okay? Sometimes the concern of an enterprise may be with the value of a category of related current investment and not with each individual investment, and accordingly the investment may be carried at a lower of cost and fair value computed category wise: equity shares, preference shares, convertible debentures. However, the more prudent and appropriate method is to carry investment individually at a lower of cost and fair value। क्या समझा? मोर प्रूडेंट एंड अप्रोप्रिएट मेथड क्या है बेटा? इज टू कैरी इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअली एट लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू। Any reduction in the to the fair value is debited to P&L. However, if fair value of investment is increased subsequently, the increase in the value of the current investment up to the cost of the investment is credited to P&L account and excess portion if any is ignored। क्या समझा? ये बताओ मेरे को अभी। 100% बरोबर सांगितलं, पण एक वाक्य प्रॉपर नहीं है। बहुत सही बोले आप। अगर फेयर वैल्यू कम हुआ कॉस्ट से तो इट विल बी डेबिटेड टू P&L। अगर फेयर वैल्यू बढ़ा सब्सिक्वेंटली सब्सिक्वेंटली तो दैट हैज बीन क्रेडिटेड टू, बट कहां तक? अप टू द कॉस्ट। उसके आगे अनटिल एंड अनलेस इट इज रियलाइज वो बुक नहीं होगा। समझा क्या? कॉस्ट और एनआरवी में अपन क्या करेंगे? एनआरवी अगर कम रहा तो भाई वो फटका किधर डालेंगे? P&L को डालेंगे। बाद में अगर फेयर वैल्यू बढ़ रहा है, बस जितना कम किया था अप टू कॉस्ट उतना ही बढ़ा सकते हैं। तुम बोलोगे सर लेकिन फेयर वैल्यू तो बढ़ गया। अबे पगले, जब बेचेगा तब, तब तक तो कॉस्ट, ये कॉस्ट और
फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। अभी फेयर वैल्यू हायर चलेगी तो कॉस्ट तक ही तू खेल सकता है। समझा क्या? नहीं समझा? पक्का? तेरा 1000 का कॉस्ट था, फेयर वैल्यू 950 हो गया पहले, उसके बाद 1040 हो गया फेयर वैल्यू। सिर्फ 50 का इफेक्ट देगा, ऊपर के 40 का नहीं। बस खत्म, ये समझा? बहुत हो गया। ये हो गया नॉर्मल इन्वेस्टमेंट को। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहा तो वो तो कॉस्ट पे ही चलेगा। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहा तो वो तो कॉस्ट पे ही चलेगा। वहां पे ये चीज नहीं है क्यों तूने आज साल के अंदर बेचने के लिए खरीदा ही नहीं उसको। ये सुनो, चलो देखते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आर यूजुअली कैरिड एट कॉस्ट, ठीक है? दीज आर कैरिड एट कॉस्ट। The carrying amount of long-term investment is therefore determined on an individual investment basis, where there is a decline other than temporary in the carrying amount of long-term valued investment. The resultant reduction in carrying amount is charged to P&L statement. क्या समझा? Long-term investment are usually carried at cost. The carrying amount of long-term investment is therefore determined on individual investment basis, where there is a decline other than temporary, मतलब permanent decline in the carrying amount of the long-term valued investment. The resultant deduction in the carrying amount is charged to P&L. अगर वो permanent nature का रहा तो, टेम्परेरी नेचर का रहा तो भाई उसका इफेक्ट अपन नहीं लेंगे, वही खेलते बैठेंगे क्या? आज कम करेंगे कल वापस बढ़ाएंगे, आप परसों वापस कम करेंगे वापस बढ़ाएंगे। परमानेंट नेचर का रहा तो सही बात है। द रिडक्शन इन द कैरिंग अमाउंट इज रिवर्स्ड व्हेन देयर इज अ राइज इन द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। सेम स्टोरी इज रिपीटेड। अगर फिर भी वापस वापस क्या हुआ, उसका वैल्यूएशन बढ़ा तो द वैल्यू क्या बोला है, कैरिंग अमाउंट इज रिवर्स व्हेन देयर इज अ राइज इन द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। कोई दिक्कत? और इफ द रीजन फॉर द रिडक्शन नो लॉन्गर एग्जिस्ट, तभी भी अपन क्या करेंगे, उसका वैल्यूएशन वापस रिवर्स करेंगे जो कम किया था। एग्जाम्पल, डिक्लाइन अदर देन टेम्पररी, समझा ना? A company in which investment is made is making cash operating losses which has resulted in reduction of its net worth. ये एग्जाम्पल्स नहीं चाहिए कौन से? डिक्लाइन अदर देन टेम्पररी नेचर, मतलब परमानेंट नेचर बोल सकते हैं। कंपनी इन विच इन्वेस्टमेंट इज मेड, वो क्या कर रही है बेटा, लॉस में जा रही है, उसकी वजह से उसकी नेटवर्थ क्या हो गई है, कम हो गई है। न्यू रेगुलेशन विच हैज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन वर्किंग ऑफ द इन्वेस्टी, सिग्निफिकेंट रिडक्शन ऑफ कोटेड प्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट। ये तीन चीजें परमानेंट रिडक्शन की ओर इशारा करती है। समझा क्या? कैरिंग अमाउंट दिया है नीचे ट्री डायग्राम में, पढ़ लो। समझा? क्लियरली इविडेंट है, जो अपन ने डिस्कस किया वही चीज यहाँ पे है, शॉर्टकट में सब आप समझा।
कोई डाउट किसी को? चेक कर रहा था, 8-10 प्रॉब्लम्स है और 2-3 और कंसेप्ट छोटे छोटे कर लेते, खत्म करके उठेंगे, पक्का? गुड। सो कैरिंग अमाउंट आपको मालूम है, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू। वैल्यूएशन कैसे निकालेगा बेटा? ऑन ओवरऑल और ग्लोबल बेसिस इज नॉट कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट, प्रूडेंट मेथड इज टू कैरी इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअली। यस, यहाँ पे डिटरमिन ऑन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट बेसिस, क्यों? अबे वो लॉन्ग टर्म है, वो इंडिविजुअली जाना पड़ेगा। यहाँ पे ग्लोबली और ग्रुपली जाते हैं अपन, ये समझा ना? कैरिड पहले दिया एट कॉस्ट, और अगर अपन उसको डिक्लाइन कब करेंगे कंसिडर, अगर वो परमानेंट नेचर का रहा तो। परमानेंट नेचर 3 चीजों के लिए कंसिडर करते हैं। पहली चीज, अगर वो लॉसेस ऑपरेट कर, लॉसेस में है, नेटवर्थ कम हो गई है। दूसरा, न्यू रेगुलेशन आ गया, उसका नेगेटिव इंपैक्ट आ गया है। उसके बाद सिग्निफिकेंट रिडक्शन ऑफ कोटेड प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये 3 चीजों में ही अपन उसका डिक्लाइन कंसिडर करेंगे, पीएनएल को देंगे इफेक्ट। बढ़ गया तो डिवर्सिफाई करेंगे। पहले केस में तो प्लेन चीज है, लेकिन कॉस्ट तक। इलस्ट्रेशन 1, an unquoted long-term investment is carried in the books at a cost of 2 lakhs. कितने को बेटा? The published accounts of unlisted company received in May 2021 showed that the company was incurring cash losses. बेटा permanent decline बोल सकते, cash losses दिया ना, मतलब operating in cash loss, declining the market value of the share, and the long-term investment may not fetch more than 20,000. अरे बाप रे, how will deal with this in preparing financial statement? क्या करोगे डार्लिंग आप? ये स्टडीन के हिसाब से क्या करोगे? और उसकी कैरिंग अमाउंट 20,000 दिखाओगे। कैरिंग अमाउंट कितनी दिखाओगे? 20,000। पढ़ो। पूरा पढ़ने को इसलिए लगा रहा कि किस तरीके से आंसर लिखने का है ये तुमको पता चल जाएगा। आंसर तो तुमको मालूम है कि भाई मेरे को वो इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट कितनी दिखानी पड़ेगी? 20,000। यही फाइनल आंसर है, लेकिन लिखना कैसे है? As stated in question, the financial statement for the year ended 31st March are still under preparation. The answer has been given on the assumption that the financial statement are yet to be completed and approved by the board of directors. Also, falling the value of investment has been considered on account of condition existing on the balance sheet date. Investment classified as long-term investment should be carried on the financial statement at cost. However, provision for diminution should be made to the recognize a decline other than temporary in the value of the investment. Such a reduction being deferred, determined and made for such investment individually as certain revised accounting for investment states that the indicator of the value of an investment are obtained by reference to its market value. The investee's assets and results are expected cash flows from investment. On the above basis, the facts of the given case clearly suggest that the provision for diminution should be made to reduce the carrying amount of long-term investment to 20,000 in the financial statement for the year ended 31st March 2021. खत्म। समझा क्या? सिंपल लॉजिक है। डिसाइड किया ना वो परमानेंट नेचर का है। परमानेंट नेचर का है बेटा, वैसे तो अपन कॉस्ट कर लेते, लेकिन परमानेंट नेचर का रहा तो डिमिनिशन अपने को दिखाना पड़ेगा, सो अपन ने दिखा दिया। Illustration 2. Now X Limited on 1/1/2021 has made an investment of 6 crores in equity shares of Y Limited, of which 50% made in long term category
एंड देयर इज टेम्पररी इन्वेस्टमेंट, मतलब 3 करोड़ के लॉन्ग टर्म है, 3 करोड़ की नॉर्मल है, द रिलेटिव वैल्यू ऑफ सच इन्वेस्टमेंट एक्सटेंड बिकम 200 lakhs as by lost case of copyright from the market condition. It is apparent that the reduction in the value is not temporary in nature. Okay, मतलब परमानेंट है, तो लॉन्ग टर्म को भी इम्पैक्ट देना पड़ेगा. हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द रिडक्शन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं. क्या बेटा? अरे सो करंट इन्वेस्टमेंट भी 100 रहेगी और 1 करोड़ की रहेगी, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी 1 करोड़ की रहेगी, क्योंकि ये टेम्परेरी नेचर का नहीं है डिक्लाइन, ये परमानेंट नेचर का है. टेम्पररी नेचर का रहता तो सिर्फ अपन क्या दिखाते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट ही, करंट करंट असेट ही दिखाते 1 करोड़ को, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दिखाते 3 करोड़ को, 16 लाख और 300 लाख. लेकिन ये परमानेंट नेचर का है, टेम्पररी का नहीं है. इसकी वजह से झक मार के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों को मेरे को क्या दिखाना पड़ेगा, 100 लाख 100 लाख. देखो पढ़ो आंसर. ये बात है ना. अगर यहाँ पे दिया होता है कि दिस इज ऑफ टेम्पररी नेचर, तो अरे बेटा, करंट असेट की जो इन्वेस्टमेंट है उसमें अब वो दिखाते 100 लाख को, और उसका 200 लाख का जो लॉस है पीएनएल को ट्रांसफर कर देते. और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपन किसको दिखाते थे, 300 को ही दिखाते थे. लेकिन अभी क्या लफड़ा हुआ, दैट इज ऑफ परमानेंट नेचर. तो अपन क्या करेंगे, दोनों को 100 100 लाख को दिखाएंगे, और दोनों का जो लॉस है वो 200 200 लाख का ट्रांसफर करेंगे पीएनएल को. बस खत्म. पढ़ लोगे ना अभी? कंसेप्ट समझा ना? थैंक यू. आगे. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज. An investment property is an investment in hand, in land or building that are not intended. An investment property is an investment in hand, land or building that are not intended to be occupied substantially for use by or in operations of the investing enterprise. An investment property is accounted for in accordance with the cost model as prescribed in AS10 PPE. The cost of any shares in cooperative society or a company, the holding of which is directly related to right to hold the investment property, is added to the carrying amount of the investment property. क्या समझा मेरे को? कुछ नहीं समझा, बताओ मेरे को. तुम समझाने वाले हो मेरे को, मैं नहीं समझाने वाला, पहले बोल देता. बोलो.
हम्म। ये 4 लाइन पढ़ के समझाने का है, उतना नहीं आ रहा क्या? बताओ। हम्म। बोलना मेरे भाई। अरे वापस बैठ, कोई दिक्कत नहीं, तो बता ना। हम्म। परफेक्ट, यही है उसका मीनिंग, यही मीनिंग है। मैं अगर कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी का शेयर ले रहा हूँ, मतलब वहां पे घर ले रहा हूँ या ऑफिस ले रहा हूँ, जो भी ले रहा हूँ, बट आई एम नॉट गोइंग टू यूज दैट प्रीमाइसेस, दैट लैंड और बिल्डिंग फॉर माई ऑफिशियल यूज और बाय। देख यहाँ पे दिया है क्या, यूज बाय और इन ऑपरेशंस ऑफ इन्वेस्टिंग एंटरप्राइज, मतलब वो मेरा ऑपरेशनल यूज में भी नहीं आने वाला और मैं भी उसको यूज नहीं करने वाला, मतलब सीधा खुली चीज क्या है, वो इन्वेस्टमेंट है, उसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। जिसको अपन खुद के लिए यूटिलाइजेशन के लिए, सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए या ऑपरेशंस के लिए खरीद नहीं रहे अपन, प्रॉपरली उसको किस लिए खरीद रहे हैं, बेचने के वास्ते। रेंटल के वास्ते भी ले सकते हैं। तूने देखा इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंटल, देखा क्या नहीं देखा? हाँ। नाउ द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज अकाउंटेड, अभी ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या हो गया, अकाउंटिंग होगा, ये अकाउंटेड फॉर इन अकॉर्डेंस विद द कॉस्ट मॉडल एज प्रेस्क्राइब इन एस 10 पीपी रिवाइज्ड। याद है तुमको कॉस्ट मॉडल क्या है? उसमें रिवैल्यूएशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक है कॉस्ट मॉडल, दूसरा है रिवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल मतलब जितना तेरा कॉस्ट इन्वेस्ट हुआ है वही वही पे बेसिस पे उसका कॉस्टिंग निकलेगा, वैल्यूएशन निकलेगा। रिवैल्यूएशन की चीज है क्या उसमें? नहीं। द कॉस्ट ऑफ एनी शेयर्स इन कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी, the holding of which is directly related to the right to hold the investment property, yes or no, is added to the carrying amount of the investment property, खत्म। उसके साथ तूने अगर कोई शेयर खरीदा है कोऑपरेटिव सोसाइटी में और अ कंपनी, जो होल्डिंग, द होल्डिंग ऑफ विच डायरेक्टली रिलेटेड टू द राइट टू होल्ड द प्रॉपर्टी, दैट लैंड एंड बिल्डिंग, तो इज एडेड टू द कैरिंग अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, खत्म। ऑब्वियसली इसके साथ वो भी खरीदना पड़ा, तो उसकी वैल्यू भी कहाँ ऐड होगी, इसमें ऐड होगी, अकॉर्डिंग टू पीपी रिवाइज एस 10 कॉस्ट मॉडल। समझा क्या? डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट कुछ दिक्कत नहीं है, मैंने खरीदी वाली इन्वेस्टमेंट अगर बेच दिया तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्पोजल। मेरे को प्रॉफिट हुआ तो बुक करूंगा, लॉस हुआ तो बुक करूंगा, खत्म। डिस्पोजल ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, डिफरेंस बिटवीन कैरिंग अमाउंट एंड द डिस्पोजल प्रोसीड्स, नेट ऑफ एक्सपेंसेस, नेट ऑफ एक्सपेंसेस अपने को खर्चा लेस करना तो अलाउड ही है, इज रिकॉग्नाइज्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, खत्म। प्रॉफिट और लॉस दो भी हो सकता है। When disposing the part of the holding of an individual investment, the carrying amount of to be allocated to that part to be determined on the basis of the average carrying amount of the total holding of investment। 50% बेचा तो 50% ही कॉस्ट अपोर्शन होगी, 70% बेचो तो 70% कॉस्ट अपोर्शन होगी, बाकी का 30% वैसे ही वैसे रहेगा। ये तो तुम बोलोगे मैं अभी प्रॉफिट कम बुक करता बाद में करूंगा प्रॉफिट बुक, किसी ऐसा नहीं चलेगा। इट शुड बी डन ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। Reclassification of investment, where the long-term investment are reclassified as current investment. Transfers are made at the lower of cost or carrying amount
at the date of transfer. Where investment are reclassified from current to long term, transfer are made at lower of cost or fair value as at the date of transfer. वही चीज बोला है. अरे मैंने लॉन्ग टर्म एसेट कन्वर्ट किया शॉर्ट टर्म में, या शॉर्ट टर्म एसेट कन्वर्ट किया लॉन्ग टर्म में, तो भी जो ट्रांसफर वैल्यू है उसकी, वो क्या पकड़ा जाएगा, उस दिन का कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच इज लोअर लॉन्ग टर्म में, और शॉर्ट टर्म में कॉस्ट और फेयर वैल्यू. सही बात है, खत्म. पहले इसमें कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट है, और दूसरे इसमें कॉस्ट और फेयर वैल्यू. शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म करते टाइम कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच इज लोअर, लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच इज लोअर. क्यों? नेचर बदल रहा है अपन वो एसेट का. तुम्हारे पास 12 फ्लैट्स है, वो पर्सनल एसेट है, तुमने वो बेचने को निकाला. या तुम्हारे पास लैंड है, अपन एक नॉर्मल एग्जांपल दे देता. कैपिटल गेन सिखाया मैंने तुमको, सिखाया है कि नहीं सिखाया है? कैपिटल गेन में क्या सिखाया था मैंने तुमको? अगर तुम्हारे पास जायदाद है, जमीन है, तुम उसके ऊपर रो हाउस कंस्ट्रक्शन की स्कीम लॉन्च करते हो, इसका मतलब क्या? Exactly. You have converted that land, that long-term asset, into stock in trade. So, on the date of such transfer, cost और NRV, NRV मतलब ये, हाँ, whichever is lower, अपन क्या पकड़ेंगे उसकी? समझा क्या? पक्का. अपन उस दिन इंडेक्सेशन निकालते, इंडेक्स वैल्यू ऑफ एक्विजिशन, ट्रांसफर के टाइम पे करते कि नहीं करते? बस, पक्का ना? कहाँ पे? कैपिटल गेन में अपन वो करते. यहाँ पे इलिस्ट्रेशन 3 जाओ क्या अभी? C Limited wants to reclassify its investment, मतलब short term, long term, in accordance with IAS 13 revised, decide that state the amount of transfer based on with the following information. First, portion of current investment purchase for 20 lakh to be reclassified as long term investment. ठीक है, the company has decided to retain them. The market value of the मार्केट वैल्यू उसकी कितनी बेटा? 25 लाख. बेटा परचेज 20 में, मार्केट वैल्यू 25 में, क्या करेगा तू? कुछ नहीं, 20 लाख को देके जाएगा, विच इज लोअर. लेकिन उधर को लिखना पड़ेगा, आंसर में देखो, तेरे को लिखना पड़ेगा. मार्केट वैल्यू कुछ भी रहने दो, अगर कॉस्ट उससे कम रही तो वी विल reclassify the asset as long term investment at cost or market value which is lower. कोई दिक्कत? देन दूसरा, another portion of current investment purchase 15 लाख to be recovered reclassified as a long term investment. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. The market value of this investment on the date of balance sheet 6.5 lakhs. क्या करेगा तू डार्लिंग? 6.5 lakhs. ये सुनो, और 8.5 लाख का लॉस तू कहाँ ट्रांसफर करेगा? P&L को. Then certain long-term investment no longer considered for holding purpose. ठीक है, to be reclassified as current income. ठीक है, original cost 18 lakh but had written down to 12 lakhs. Written down to 12 lakhs, हाँ, to recognize other than temporary decline. मतलब permanent decline था इसलिए 6 लाख कम कर दिया था, तो अभी 12 लाख ही आएगा उसका कॉस्ट. खत्म. देखो आ गया. So current investment should be carried at 12 lakhs. खत्म हो गया आंसर. देख लो, आसान है कि नहीं है? ये थ्योरी अगर पढ़ा और कंसेप्चुअली समझा तो फिर तुमको आसान लगता है, नहीं तो तुम सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओगे, तुम रट्टा मारते, इसको ये करेंगे, उसको वो करेंगे, इसको वो करेंगे, उसको वो करेंगे. ये मत करो. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. या डिस्क्लोजर आया अपन लास्ट मोमेंट पे, और इसके बाद से प्रॉब्लम रहेंगे.
डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट आर अप्रोप्रिएट। क्या क्या डिस्क्लोजर दिया है बेटा? ABCDEF, ये डिस्क्लोजर है। अपने को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे फॉर AS13 इन्वेस्टमेंट्स? कोई दिक्कत? पहला, द अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड बाय फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, लिखना पड़ेगा, देना पड़ेगा डिस्क्लोजर। कॉस्ट और जो भी विच एवर इज लोअर ले रहे, क्या कर रहे, ये हर एक चीज देना पड़ेगा। देन द अमाउंट इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर interest dividend showing separately dividend from subsidiary companies and rental on investment showing separately such income from long term and current investment. Gross income should be stated, the amount of income tax deducted at source being included in the and include under advance tax paid। समझा क्या? P&L में भी सब डिटेल देनी पड़ेगी, डिविडेंड कितना आया, इंटरेस्ट कितना आया, प्रॉफिट कितना आया, लॉस कितना बुक किया, ऐसा ना। Then profit and loss from disposal of current investment and changes in carrying amount of such investment, ये भी देना पड़ेगा। कैरिंग अमाउंट अगर अपन खुद के हाथ से चेंज कर रहे हैं तो उसका डिस्क्लोजर तो ज्यादा बनता है, क्योंकि तू खुद डिसाइड कर रहा है वो टाइम पे कि यार ये कम है या ये कम है, तो किस तरीके से तूने डिसाइड किया ये भी तेरे को डिस्क्लोजर में देना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड चेंजेस इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ सच इन्वेस्टमेंट, कोई दिक्कत? पहला करंट इन्वेस्टमेंट था, दूसरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था। Now, significant restriction on the right of ownership, realizability, okay, of investment, ठीक है, और the remittance of income proceed, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो भी अगर रिस्ट्रिक्शन रहे, कुछ अलग ट्रांजेक्शन रहे, तो अपने को वो शो करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना। द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ कोटेड एंड अनकोटेड इन्वेस्टमेंट गिविंग द एग्रीगेट मार्केट वैल्यू ऑफ कोटेड इन्वेस्टमेंट, ये भी देना पड़ेगा। Other disclosure are specifically required by the relevant statute गवर्निंग द एंटरप्राइज, मतलब अगर किसी और स्टैच्यू से तुमको कुछ और डिस्क्लोजर देने की जरूरत है तो वो भी देने पड़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, मतलब करंट असेट एंड लॉन्ग टर्म असेट। इलस्ट्रेशन 4, अभी मजा आएगा ना वीडियो, पढ़ो। Mrs. Innovative Garment Manufacturing Company Limited invested in shares of another company on 1st October 2023 at a cost of 2,50,000. It also earlier purchased the gold for 4 lakh and silver 2 lakh on 1st March 2021. Market value as on 31st March 2024 of the investment are as follows। 24 का वैल्यूशन है, शेयर का 2.25 लाख है बबू, ठीक है। विद इन 6 मंथ्स है, अपन उसको करंट इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। गोल्ड ऑल ये अपना हो गया लॉन्ग टर्म 6 लाख, 2 लाख का हो गया 350, तो अपन उसको कॉस्ट पे लेंगे। हाउ Bow investment will show in the books of accounts of Messrs. Innovative Garment Company Limited then 31st March as per a provisions of fund, कोई दिक्कत नहीं। इसकी 2.25 लाख ले लो, 6 महीने के अंदर क्या है वो आया ना। 2.5 लाख कॉस्ट है और 2.25 लाख क्या है, कैरिंग अमाउंट है। तो तेरे को कहाँ पे लेना पड़ेगा, कैरिंग अमाउंट को, फेयर वैल्यू, ये सुनो 2.25 लाख, और बाकी के कॉस्ट को लेना पड़ेगा 4 लाख और 2 लाख, खत्म। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ना, 21 में लिया था, समझा क्या? थैंक यू। कितना आसानी से समझ रहे हो तुम अभी, ग्रेट है। आंसर पढ़ सकते हो ना, या वो पढ़ के बताओ। इलस्ट्रेशन 5, इन 21 Mrs. Y Limited issued 12% fully paid debentures, ठीक है, अब 100 rupees each। Interest being payable
हाफ ईयरली ऑन 30 सितंबर 31 मार्च, ठीक है, एवरी अकाउंटिंग है, डिबेंचर है, मतलब 6 रुपया 6 रुपया। ऑन 1 December 22, Bull and Bear purchased 10,000 of these debentures at 101 x interest, ठीक है, also paying broker of 1% x interest on 1st March 2023. Firm sold all these debentures at 103 x interest price, again paying brokerage 1%. Prepare investment account in the books. Bull and Bear, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करो परचेस। कब परचेस किया तुमने? दिसंबर में, यस। सो एंट्री मारो 1 दिसंबर को टू बैंक। इन्वेस्टमेंट शुड बी डेबिटेड ना, टू बैंक। क्या करोगे, कैलसी है? अरे है क्या है? चल मार टोटल, कितने से लिया तूने? 101। हम्म, करना है, कितना आएगा? तो ये इंटरेस्ट है पगले सोहेल, तो अच्छे से दे। मिलने वाला है ना, ड्यू है ना, पागल है क्या? ड्यू है ना। देख, मेरा पहला इंटरेस्ट कब पे हुआ है? 30 सितंबर को। अभी मैंने कब खरीदा ये? कौन सा दिसंबर पे? 31 है 1। हाँ, तो मतलब अक्टूबर और नवंबर का ब्याज मेरे को क्या है, ड्यू है, वो मिलने ही वाला है बाद में। यस और नो? हाय ना डार्लिंग। तो 2 महीने का ब्याज 2%। ऑब्वियसली, 1 रुपया महीने से, 100 रुपए का डिवेंचर है ना, तो 1 रुपया महीने से ब्याज, 2 महीने का ब्याज 2 रुपया, 10,000 डिवेंचर इंटू 2, कितना मिला? 20,000। यस और नो? पक्का? श्योर ना? खत्म। नॉमिनल वैल्यू उसकी कितनी है? 10 लाख। कॉस्ट कितनी है बताओ? क्यों? 101 से खरीदा, मतलब 10,10,000 प्लस 1% ब्रोकरेज। अच्छे से समझ, ऑफ एक्स इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ द परचेस, मतलब तेरे को 1% कहां पे ऐड करना पड़ेगा? 10,10,000 में, 10 लाख पे नहीं। नहीं तो तूने 10,20,000 लिखा रहता है यहाँ पे। कुछ नहीं, 10,10,000 प्लस 1%, इट विल बी 10,20,100, इट विल बी कॉस्ट। नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 10 लाख। और उसके ऊपर इंटरेस्ट मेरा क्या है बेटा? 20,000। क्यों? 2 महीने का। हाँ या ना? क्रेडिट में देखो, बेच दिया अपन ने, कब बेच दिया? 1 मार्च को। हाँ या ना? 5 महीने के इंटरेस्ट के साथ बेचा। वो भी कैसे बेचा? एक्स इंटरेस्ट, 103 एक्स इंटरेस्ट। अरे हाँ या ना? तो 103 मतलब कितना हो गया वो? -1%। खत्म। आया क्या? देखो, तो कमीशन दोनों साइड का जाता है मेरे भाई। हाँ, ट्रांजैक्शन में ड्यूटीज और खर्चे दोनों साइड को लगते हैं। बेचते टाइम भी मेरे को खर्चा है कि नहीं है? बोला है ना, कितना? एक्स, जो भी प्राइस है मेरी उसका 1%। एक्स प्राइस है 10,30,000, इसलिए बोला सीधा कैलसिफाई करो, -1%, 10,19,700। इंटरेस्ट का फिगर कितना है तब तक? 5 महीने का 50,000। नॉमिनल वैल्यू 10,000, 10 लाख। यस और नो? अरे हाँ या ना? अभी मेरा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस हुआ।
कॉस्ट में मेरा लॉस हुआ, 10,20,000 100 को गिरा था, बेचते टाइम 400 रुपये कम में बेचा, यस और नो, लेकिन इंटरेस्ट में मेरा बेनिफिट हुआ। हाँ या ना? पक्का? देखो 30, 20, 400 समझा क्या? खत्म। अरे नीचे वर्किंग नोट भी दिया है, ग्रेट 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 ग्रेट। 10,10,000 प्लस 10%, 10,20,000 100, और यहाँ पे कितना है 1030 माइनस 1%, 10,300, सो दैट विल बी 10,19,700। कोई दिक्कत? खत्म। ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट समझा ऊपर का? श्योर? अगला क्वेश्चन पढ़ो। अच्छे से पढ़ो, टाइम अपने पास, कोई घाई नहीं है। कितने क्वेश्चन है रे? ये 6, 7, 8, 9 और 9 है, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। On 1st April 2021, Mr. Krishnamurthy purchased 1,000 equity shares of 100 rupees each in Telco Limited at the rate 120 from a broker who charged 2% brokerage. 120 को गिरा बच्चे को, 120 इंटू 1000 मतलब हुआ 1,20,000, प्लस ब्रोकरेज गया 2%, सो प्लस 2% उसको कर, 2,400 रुपये ब्रोकरेज ना, 1,24,200, ऐसे आया क्या? इनका 50 पैसा एज अ कॉस्ट ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर स्टैम्प, ठीक है, पर 100 रुपीज मतलब आधा टका, सो आधा टका मतलब कितना हुआ? 600 रुपया, तो 2,400 प्लस 600, 3,000, तो 1,20,000 प्लस 3,000, ये आया ना अपना? देख, 120 इंटू 1000 कितना है डार्लिंग? 1,20,000, उसके ऊपर 2%, 2% मतलब 2,400, और उसके ऊपर आधा परसेंट, 100 के ऊपर 50 पैसा मतलब आधा परसेंट, 100 के रुपए 1 रुपया मतलब 1 टका, हाँ तो आधा टका मतलब 600, 1,20,000 पे, तो ये हो गया 1,23,000। कोई दिक्कत? समझा? ऑन 31st जनवरी 2022, मतलब 10 महीने बाद, खरीदने के बाद 10 महीने, बोनस और डिक्लेयर्ड इन द रेशियो 1:2, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, मतलब उसको बोनस शेयर मिलने वाले। वैल्यू रह गया उसका? कुछ भी नहीं, नो वैल्यू। Before and after the record date of bonus share, the share were quoted at 175 rupees per share and 90 rupees per share respectively. देख, पहले 1000 को रेट क्या चल रहा था? 175 का। अभी उसको शेयर कितने मिले? 1:2, 2:1 या 1:2? क्या सोच के बता? हम्म? श्योर? पक्का? दोनों से एक? मतलब क्या? श्योर? मतलब उसके शेयर कितने हो गए? पक्का? करते
पूरा क्वेश्चन पढ़ दे। On 31st March 2020, Mr. Krishnamurthy sold a bonus share to broker who charged 2% brokerage. ठीक है, show the investment. कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ध्यान दो गाइस। 1000 शेयर थे मेरे पास, कितने कितने से थे वो टाइम पे? मेरी प्राइस क्या थी? 175। मेरे को इसका कोई लेन देना है क्या? अभी कुछ भी नहीं। बेच रहा हूँ क्या? नहीं। अभी आफ्टर बोनस मेरी प्राइस कितनी हुई? 90। और मेरे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 1500। अबे 500 बेचा, सिर्फ बोनस शेयर बेचा एडे। 1000 शेयर वैसी की वैसी रे, काई मत कर। पक्का? तो 1000 में से उसने कितना बेचा बेटा? 500। कितने से बेचा? 90 से। मतलब कितने को बेचा? 45,000। उसमें मेरे 2% क्या दिया बेटा? ब्रोकरेज दिया। 2% ब्रोकरेज मतलब कितना? 900 रुपया। मतलब 44,100 मेरा क्या हुआ? इनकम जनरेट हुआ। हाँ या ना? हाँ या ना? बोनस शेयर को कॉस्ट नहीं रहती है। अभी तेरे पास कॉस्ट थी 1,23,000। हाँ या ना? श्योर? क्या हुआ? अरे बेटा 90 से तेरे पास 1000 शेयर बचे, मतलब कितने के रहे? 90,000 के। यस, लेकिन कॉस्ट कितनी है? गुड, आई लाइक इट। मतलब तूने इन्वेस्टमेंट अकाउंट जब सिखाया था तो तेरा पूरा ध्यान था वहां पे। आई लाइक इट। मेरा अभी 1,30,000 कॉस्ट 1000 शेयर का नहीं है, 1500 शेयर का है, क्योंकि 500 मेरे को क्या मिले? बोनस। उसमें से मैंने कितने बेचे? 500। तो मेरे को पहले कॉस्ट निकाला। देख, मेरे को कॉस्ट और एनआरवी कैरिंग अमाउंट दोनों निकालना है। कैरिंग अमाउंट तो दिया है 90, कॉस्ट कितना है निकालना पड़ेगा कि नहीं? चलो लो फिर। बचे हुए 1000 शेयर की कॉस्ट 1,23,000 डिवाइडेड बाय 1500 इन 2000, बता कितना आया? 82,000। कोई दिक्कत? ये मेरी कॉस्ट है। और मेरी कैरिंग अमाउंट कितनी है? 1000 शेयर इंटू 90, मतलब कितना बेटा? 90,000। तो इन दोनों में से विच एवर इज लोअर, अपन ने प्रिंसिपल देखा अकॉर्डिंग टू एस 13। तो कितने को लूंगा मैं क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन, मतलब सॉरी इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन? 82,000। जाओ नीचे क्रेडिट में। अभी मेरे वर्किंग नोट हो गए। पहला 31 आया क्या? देखो, बेचे मैंने कब? 31 मार्च को। तुमने बोला सर बोनस शेयर क्यों नहीं डाला? अबे उसको वैल्यू नहीं तो क्या डालूंगा? वर्किंग नोट में लिख दो, बोनस शेयर डजंट हैव एनी वैल्यू, सो इशू ऑफ बोनस शेयर इज नॉट शोन इन द इन्वेस्टमेंट अकाउंट। खत्म। कोई दिक्कत? आना? नहीं दिखाया है, देख। बट उसकी वैल्यू क्या है? जीरो। नॉमिनल वैल्यू तो है ना उसकी। मेरे पास 1 लाख नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स थे, अभी बोनस मिले 50,000 नॉमिनल वैल्यू के। मतलब मेरा कैपिटल का बेस कितना हो गया वहां पे? 1,50,000 ना? देखो वो है क्या? 31 जनवरी को। देखना आंसर में है क्या? हाँ। अभी तूने सेल किया कब? 31 मार्च को। कितना? 45,000 को। उसमें से 900 रुपये तूने क्या दिया? ब्रोकरेज। सो तेरे हाथ में कितना है? 44,100। पर नॉमिनल वैल्यू कितनी थी उसकी? 50,000। देखो है क्या? अभी क्लोजिंग स्टॉक कितना है तेरे पास? 1000 शेयर, नॉमिनल वैल्यू 1 लाख, कॉस्ट 82,000, कैरिंग अमाउंट 90,000। विच एवर इज लोअर, कौन सा है? 82। डाल दो। कोई दिक्कत? खत्म हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व। प्रॉफिट आया तेरे को 3,100। समझा क्या? ग्रेट। वर्किंग नोट देख लो जो अपन ने बना है। पहला 123 का है, उसके बाद 41,100 का है। सही बात है। उसके बाद ये प्रॉफिट भी आया।
प्रॉफिट कैसे निकला वो अपना बैलेंसिंग फिगर करके भी आएगा, लेकिन तुमको वर्किंग नोट में देना है तो दो। 1,500 शेयर के ऊपर तुमने कितना बेचा, 500, तो कॉस्ट निकालो 500 शेयर की। ये जो ऐसे 82 है वैसी वहां पे आएगी 41। 41 को तूने बेचा कितने में, 44,000, कितने, 44,100 में। सो प्रॉफिट विल बी 3,100। देख लो, नहीं समझा, पक्का देख, 1,500, 1,23,000 है ना, मतलब 500 शेयर्स का कितना हुआ, 41,000, और 1,000 शेयर्स का कितना हुआ, 82,000। ये कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन किया अपन ने, पक्का। सो ये 41,000 का माल बेचा कितने में, 44,100 में। सो 3,100 का प्रॉफिट। नीचे देखो वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स, 82 और 90। किसको लेंगे, 82 को, खत्म। बोनस शेयर्स डू नॉट हैव एनी कॉस्ट। हो गया। अगला क्वेश्चन 7th, प्लीज रीड। X purchased 500 equity shares of 100 rupees each in Omega Limited for 62,500। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। Inclusive of brokerage and stamp duty. Some years later, the company resolved to capitalize its profits and to issue the holders of equity share, one share, one equity bonus share for every share held by them। ठीक है, 1:1 दिया है, मतलब अभी 1,000 शेयर हो गए अपने। प्रायोरिटी कैपिटल लिमिटेड और एक से बचे थे, उसका कोई लेन देन नहीं हमने। आफ्टर कैपिटलाइजेशन शेयर्स आर कोटेड 92.50, तो अपनी 62,500 की इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हो गया अभी 92,500। मिस्टर एक्स सोल्ड बोनस शेयर्स एंड रिसीव्ड 90 रुपीज पर शेयर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसने 500 शेयर बेच दिया 45,000 में। प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑफ एक्स बुक ऑन द एवरेज कॉस्ट बेसिस। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत नॉर्मल चीज है। चलो परचेस करो, 62,500, 50,000 नॉमिनल वैल्यू। 500 शेयर लिया ना मैंने, यस और नो, कितने से थे वो, 100 रुपए से थे। यस, मतलब 50,000 नॉमिनल वैल्यू के शेयर मैंने कितने मिले, 62,500 इंक्लूसिव ब्रोकरेज चार्जेस सब। अभी मेरे को बोनस मिला, बोनस का वैल्यू 0, लेकिन 1:1 बोनस मिला, मतलब नॉमिनल वैल्यू कितना ऐड हुआ, 50,000। मतलब मेरा शेयर्स कितना हो गया, लाख रुपए नॉमिनल वैल्यू का, जिसका कॉस्ट है 62,500। अभी मैंने बोनस शेयर बेच दिया, उसमें मेरे को कोई भी ब्रोकरेज विक्रेज नहीं लगा। सो 500 इंटू 90 रुपीज से बेचा ना। सो बोला था मैंने 45 को बेचा, नॉमिनल वैल्यू 50,000, बेचा 45 को। अभी मेरे पास बैलेंस कितना बचा, नॉमिनल वैल्यू 50,000, कैरिंग अमाउंट 92, लेकिन मेरे को कॉस्ट से कंपेयर करना पड़ेगा क्या नहीं। तो कॉस्ट से कंपेयर करूंगा मतलब क्या, कुछ नहीं, 62,500 इज माई कॉस्ट फॉर 1,000 शेयर्स। अभी उसमें से 500 बेच दिए, 500 बचे, 62,500 divided by 2, 31,250, it will be cost। कैरिंग अमाउंट कितनी उसकी, 92, नहीं पगले, 92.50 इंटू 500, 500 शेयर बचे ना पगले अभी, तो कैरिंग अमाउंट 46,000 के करीब आएगी। तो लिस्ट क्या है, कॉस्ट, लिस्ट क्या है, कॉस्ट, कॉस्ट क्या है मेरी, 31,250 डाल दिया। ओके, समझा क्या, वर्किंग नोट में चलते, 2 मिनट में समझा देता। बोनस शेयर को वैल्यू नहीं है, डाल दो, कॉस्ट नहीं है, नॉमिनल वैल्यू है। प्रॉफिट कितना है, बहुत आसान चीज है बेटा, मैंने बेचा कितने में, 45 में। माल कितने का था, 31,250 का। तू बोलेगा क्यों, देख 62,500 1,000 शेयर के लिए, 500 शेयर के लिए कितने बनते बेटा, 31,250। बेचा कितने में मैंने, 45 में, 45 माइनस 31,250, 13,750 मेरा प्रॉफिट आ गया। देखा, वैल्यूएशन कितना है, वही चीज वापस, मेरा वैल्यूएशन है 31,250। अरे 500 बचे ना मेरे पास, ये सोल्ड
और ये क्या बेटा? स्टॉक 500 का कितना बेटा? 31,250। आ गया क्या? मार्केट प्राइस कितना है? 92.50 इंटू 500, सो है 46,250। तो छोटा कौन है? डाल दो। कॉस्ट बीइंग लोअर द मार्केट प्राइस, लोअर देन द मार्केट प्राइस, देयरफॉर शेयर आर कैरिड फॉरवर्ड एट कॉस्ट। डाला क्या? देखो, खत्म हो गया क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन 8। समझा क्या डार्लिंग? कोई डिफिकल्टी? पक्का? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होने के बाद अपना कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है अभी? बोरोइंग कॉस्ट। ये भी अच्छा है। हेवी कंसेप्ट नहीं थे ना इसमें। पीपी कैसा था? मस्त। आगे नहीं, उसमें लैंग्वेज डिफिकल्ट था। बेसिकली कंसेप्ट वाज नॉट डिफिकल्ट, लैंग्वेज वाज डिफिकल्ट। आपने क्या किया? पीपी? पीपी नहीं करवाया इनसे? ओके। On 1st April 2021, Rajat has 50,000 equity shares of P Limited at a book value of 15 rupees per share. Nominal 10 रुपया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। He provides you the further info, provides you the further information, ठीक है। On 20 June 20 he purchased another 10,000 शेयर। पहले 5,000 शेयर थे उसके पास, अभी 10 और लिए। 16 रुपए से खरीदे, हाँ। पहला 15 से था, अभी 16 से खरीदा। On 1st October, P Limited issued one equity बोनस शेयर फॉर एवरी 6 शेयर हेल्ड, मतलब 10,000 के बोनस मिले उसको। 60,000 शेयर हो गए थे ना, पहले ओपनिंग में 50 थे, फिर 10 खरीदे, तो 60,000 शेयर को 6:1 बोनस मिला, मतलब 10,000 मिला, जिसको कोई भी कॉस्ट कॉस्ट नहीं है। नॉमिनल वैल्यू विल बी 10 रुपीज पर शेयर से 1 लाख रुपया। On 31st October 2021, the director of limited announced right issue which entitles the holder to subscribe 3 shares for every 7 shares, ठीक है, मतलब 70 को उसको और 3 मिले। यस। कितने से मिला राइट इश्यू? उसको 15 रुपए से मिला। द शेयर होल्डर कैन ट्रांसफर their राइट्स इन फुल और इन पार्ट। रजत sold 1/3 entitlement to उमंग और a consideration of 2 रुपया एंड सब्सक्राइब द रेस्ट, मतलब 2/3 को उसने अप्लाई किया, मतलब 20,000 शेयर को उसने अप्लाई किया। सही बात है ना? 10,000 बेच दिया 2 रुपए से, तो उसको प्रॉफिट हो गया सीधा खुला 20,000 रुपये का। और ये 20,000 शेयर उसने खरीदा 15 रुपए से, मतलब 3 लाख रुपया। हम्म। मतलब उसके पास अभी 90,000 शेयर हो गए। 90,000 शेयर वर्थ, वर्थ कितने? अरे नॉमिनल वैल्यू कितनी? पागल है क्या रे? नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए से, है ना? मतलब 9 लाख रुपया नॉमिनल वैल्यू। बच्चे के पास 9 लाख के शेयर है, नॉमिनल वैल्यू के। वर्थ निकालेंगे ना, उसने कुछ नहीं बेचा है, उसने सिर्फ राइट इशू बेचा है 20,000 से। दैट विल, कैसे पीएनएल में जाएंगे पे? कहाँ जाएगा पीएनएल में? या मैंने राइट जो खरीदा उसमें से एडजस्ट करूंगा? क्या हुआ? क्यों? क्वेश्चन वापस पढ़। क्वेश्चन वापस पढ़। बताओ। अब बता। क्या?
मेरे को जो राइट मिला है वो बेचा, वो क्या होगा बेटा? प्रॉफिट होगा। खुली चीज क्या है? तुमने अगर वो ट्री डायग्राम पढ़ा रहता ढंग से तो तुम्हारे दिल में सवाल ही पैदा नहीं होता था। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट क्या है मेरी? ओपनिंग का कितना है? 50,000 शेयर, 15 रुपए से, मतलब 7.5 लाख रुपया। उसके बाद मैंने 16 रुपए से 10,000 शेयर खरीदे, मतलब 1,60,000 रुपया। कोई दिक्कत? दो ट्रांजेक्शन खत्म हो गए। उसके बाद मेरे को मिले कितने शेयर? 10,000 बोनस, जिसका कॉस्ट जीरो है, लेकिन नॉमिनल वैल्यू क्या है? 1 लाख। तो अभी मेरे पास 7 लाख नॉमिनल वैल्यू के शेयर हो गए। कंपनी ने राइट इशू किया 7:3, मैंने उसमें से 1/3 राइट बेच दिया, उसका मैंने सीधा पैसा ले लिया। प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? प्लेन इनकम है ना वो। और बाकी के दो हिस्से मैंने खरीद लिए, मतलब 30,000 शेयर में से 10,000 का राइट मैंने बेच दिया, 2 रुपए से 20,000 रुपए को, हो जाएगा P&L में। और जो भी 20,000 शेयर है वो मैंने कितने में खरीदे? 15 रुपए से खरीद दिया है ना, 15 रुपए से खरीदे। तो 15 रुपए इंटू 20,000 शेयर, कितने हो गए मेरी इन्वेस्टमेंट? 3 लाख। तो मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट हुई है 7.5, 1,60 और 3 लाख। टोटल मारो जो भी आएगा मेरे भाई। और मेरे शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 9 लाख। तुम बोले सर 9 लाख कैसे? अबे ये डे 9 लाख ही है ना। पहले 5 लाख, फिर खरीदा 1 लाख, फिर एक बोनस मिला 7 लाख, और फिर अभी राइट इशू खरीदा 2 लाख, मतलब नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 9 लैक्स। और कॉस्ट क्या है? 12,10,000। देखो आंसर में। ओपनिंग देखा क्या? 50, 15 रुपए से 7.5। देन 20 जून को मैंने खरीदा 10,000 शेयर 16 रुपए से, 160। कोई दिक्कत? फिर मेरे को फुकट मिला 1 अगस्त को 10,000, नॉमिनल वैल्यू है, ये नहीं है कॉस्ट। आया ना? फिर मैंने 5/11 को खरीदा राइट इशू, कितने? 20,000 शेयर, 15 रुपए से 3 लाख को। अभी मेरी टोटल शेयर जो है 90,000, नॉमिनल वैल्यू 9 लाख, और कॉस्ट कितना हुआ बेटा? 12,10,000। तू बोलेगा सर वो 20,000 की एंट्री यहाँ पे क्यों नहीं? शेयर बेचा क्या? शेयर बेचा क्या? क्या बेचा? खत्म। नीचे पढ़, वर्किंग नोट में दिया होगा। नहीं दिया? दिया है ना, सेल ऑफ राइट, तीसरा वर्किंग नोट। 30,000 के 1/3, मतलब 10,000 इंटू 2, दैट इज 20,000 टू बी क्रेडिटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। समझा क्या? वो इंक्लूसिव नहीं खरीदा था ताकि उसकी रिकवरी कर ले, वो अपने ही थे जिसको अपन ने बेचा। और बाकी के जो अपन राइट खरीदा वो 15 रुपए से ही खरीदा, क्योंकि उसकी कॉस्ट ही वही थी। कोई दिक्कत? नाइन्थ इलस्ट्रेशन प्लीज रीड। मेरे हिसाब से ना लास्ट इलस्ट्रेशन है ना? पढ़ो। On 1st 4 2021 Sundar had 25,000 equity shares of X Limited, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। at a book value of 15 rupees per share। नॉमिनल वैल्यू कितना है बेटा इसका? 10 रुपया। ऑन 20 जून परचेस 5,000 shares of the company, 16 रुपए से 80,000 के खरीदे। The director of X Limited announced a bonus and right issue, no dividend was payable on this share, ठीक है, the time of issue और आज फंडा। बोनस है 1:6:1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 25,000 प्लस 5,000, 30,000, 30,000 को 5,000 मिले, मतलब 35 हो गए। फिर राइट इशू हुआ 7:3, मतलब 35 को 15,000, ऐसा नो, 15 रुपीज पर शेयर। डेट ऑफ पेमेंट 39
and the shares entitled right transfer right full in part. One third right entitled share 2 rupees per share. Okay. Now dividend for the year ended 31 to 20% declared by X Limited and received by Sundar on 31st 10 2021. ठीक है. Dividends of the share for a share acquired by him on investor are to be adjusted against cost of purchase. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. 20% मतलब 2 रुपये से डिविडेंड था. 5,000 पे 2 रुपये से कितना हो जाए 10,000. तो 80,000 में से 10,000 चले गए, वो रह गए 70,000. जो अपन ने खरीदा था ना 5,000 शेयर 16 रुपये से, वो कितने को जा रहे थे अपने को 80,000. तो उसका डिविडेंड कम था, तो वो डिविडेंड अपने को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा. हाँ या ना, पक्का? अरे हाँ या ना डार्लिंग? नहीं, देख लो. अरे वही होगा, कॉस्ट में एडजस्ट ही होगा, वो टेंशन मत लो. मिला अपने को 20 तारीख को नहीं है, 16 को, जिस दिन अपन ने खरीदा. मिला बाद में वो. चलो टेंशन मत लो, समझा दो. पूरा क्वेश्चन पढ़ने दो. ऑन 15/11 सुंदर सोल्ड 25,000 शेयर. ओके. आड़ प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज मतलब 15 से बेचा. मतलब किससे बेचा? 15 से, क्योंकि 10 रुपये नॉमिनल वैल्यू है ना. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट P&L अकाउंट. If you are in for your exercise, assume that the books are closed on 31st 12. अरे वाह वाह वाह, great. And shares are valued at average cost. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. चलो खत्म करते. आ जाओ, शुरुआत से शुरुआत करते. ओपनिंग में क्या था? 25,000 शेयर 15 रुपए से. डाल दो ओपनिंग. डाला क्या देखो. एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ के अपन जाते. उसके बाद 20/6 को अपन ने माल खरीदा 5,000 शेयर 16 रुपए से. है कि नहीं है? क्वेश्चन में पढ़ो. 80,000 रुपया. डाला क्या देखो. डाला क्या डार्लिंग? ग्रेट. उसके बाद क्या हुआ? बोनस मिला अपने को 16 अगस्त को. कितना? 6:1 मतलब 5,000 शेयर्स. चलो डाला क्या? 5,000 शेयर. हाँ या ना? उसके बाद राइट इशू हुआ. क्या हुआ? अपने को कितने मिले? 15,000 शेयर मिले. उसमें से अपन ने 15,000 में से 1/3 बेच दिया 5,000. कितने से? 2 रुपए से 10,000 P&L. और बाकी के अपन ने खरीदे 10,000. कितने रुपए से खरीदे उसको? 15 रुपए से. डालो फिर. 30 सितंबर के पैसे देने थे. यस. 10,000 शेयर खरीदे 15 रुपए से, 1.5 लाख. कोई तकलीफ डार्लिंग? कोई तकलीफ? ओए बेटा, कोई तकलीफ? अभी मेरे को डिविडेंड मिला है. क्या मिला है? डिविडेंड. वो जो डिविडेंड है वो मेरा इनकम है. लेकिन जो मैंने 5,000 शेयर खरीदे थे वो कम डिविडेंड खरीदे थे, तो वो डिविडेंड उसके कॉस्ट से क्या होगा बेटा? एडजस्ट होगा. तो उसकी वजह से जब मेरे को डिविडेंड मिलेगा, मेरे को वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, ना कि P&L को. तो वही कर रहा हूं ना. तो मैं किधर क्रेडिट कर रहा हूं उसको? इन्वेस्टमेंट को. बाकी का डिविडेंड किधर क्रेडिट करूंगा जाने मन में? P&L को. देख नीचे P&L में डिविडेंड देख 50,000. क्यों? ओपनिंग के जो 25,000 शेयर थे मेरे, उसके ऊपर 2 रुपए से जो डिविडेंड मिलेगा कहां जाएगा? वो P&L में. आया क्या? देख 50,000. मेरा राइट इश्यू का 10,000 भी कहां जाएगा? P&L में. आया क्या? वो 10,000 P&L में. ये तो समझे क्या? अरे भिकार छोटो, समझा क्या? पक्का. लेकिन जो 5,000 शेयर का डिविडेंड है 2 रुपए से, कब मिलेगा वो मेरे को? 30 सितंबर या अक्टूबर, सॉरी 31 अक्टूबर को. तो वो कहां जाएगा? कंपलसरी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाएगा. वो इनकम में नहीं जाएगा. दैट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ शेयर्स. समझा क्या? तो देख, डाला क्या? बाय बैंक 10,000. डिविडेंड ऑन शेयर्स एक्वायर्ड ऑन 20/6/2021. तो कॉस्ट ही उसकी कितनी आनी चाहिए थी? 70,000. लेकिन वो मिला कब अपने को? अक्टूबर में. रहा ना. इसकी वजह से कॉस्ट में 88,000 लिखा और बाद में मिला वो 10,000 क्रेडिट में लिखा. समझा क्या?
पक्का 100% समझा क्या? सो अपना ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुए थे। अभी माल बेचा, माल कितने से बेचा? 15 से बेचा, 25,000 शेयर। कब बेचा? 15 नवंबर को बेचा। तो बेचो 25,000 शेयर इंटू 15 रुपया बेचना है। खुला देख आया क्या? 375 बाय बैंक आया ना? अभी मेरे को प्रॉफिट निकालने का है शेयर्स पे। कैसे निकालूंगा? सोच। पहले मेरे पास थे 25,000 शेयर, फिर 5 लिए, फिर 5 फुकड़ मिले, फिर 10। मतलब अभी मेरे पास टोटल शेयर कितने बेटा? 45,000 शेयर्स। यस और नो? एट व्हाट कॉस्ट? पहली 375 है, उसके बाद 80, फिर 1,50,000 मारना टोटल। अरे मारना टोटल पहले तीनों की, माइनस 10,000। क्यों? डिविडेंड एडजस्ट करना पड़ेगा ना। 5 लाख। कोई दिक्कत डार्लिंग? डिवाइडेड बाय 45,000 इंटू, कुछ मत कर उसको, सीधा इंटू 25,000। 3 लाख। कुछ तो गलत किया तुमने। 555 आ रहा है क्या? 556 आ रहा होगा। तो 0.55 बोलना आगे का। तो वी विल टेक इट टू द 556। अभी कुछ चेंज मत करो, उसी मत करो। 20,000 इक्वल टू दबाओ। 2,64,444। यस, ये आया क्लोजिंग स्टॉक, ये सेल्स और ये क्लोजिंग स्टॉक। यस और नो? 45,000 शेयर का हिसाब कंप्लीट हो गया ना? अभी 3,33,556 कॉस्ट के शेयर मैंने बेचे 3,75,000 में। तो निकालो प्रॉफिट। 3,75,000 माइनस 3,30,556, 44,444। ये डाल दो बेटा प्रॉफिट को। इन्वेस्टमेंट में डाला गया और क्लोजिंग स्टॉक आया मैंने जो निकाला था एंड में 2,64,444 फॉर 20,000 शेयर। 31 दिसंबर को क्लोज करो। अपने आप तुम्हारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट टैली हो जाएगा। समझा क्या? पक्का समझा क्या? कोई दिक्कत? कॉस्ट कैसे निकाला समझा? टोटल मारा, उसमें से 10,000 लेस किए, इक्वेट किया 45,000 शेयर के साथ। पक्का समझा? अभी पी एंड एल देखो, पी एंड एल में प्रॉफिट ये रहे ना, ये ट्रांसफर करना पड़ेगा ना इन्वेस्टमेंट से। 44,444 वो बचा था, 10,000 और 50,000 डाल दिए थे। सो मेरे को नेट प्रॉफिट आया 1,04,444। समझा क्या? देख, बोनस शेयर 5,000, राइट शेयर 15,000, उसमें से 5 बेच दिया 10,000 रुपए को। यस और नो? और बाकी के खरीद लिया 1.5 लाख को। डिविडेंड मिला 50,000, ये डिविडेंड मिला 10,000 इज एडजस्टेड टू द इन्वेस्टमेंट अकाउंट। उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ 25,000। देख, 3,75,000 प्लस 80 प्लस 1.5 लाख माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 45, ये आया 3,30,556। उसके बाद प्रॉफिट आया 375 माइनस 336, 44,444। ऐसा ना? उसके बाद कॉस्ट ऑफ शेयर क्लोजिंग स्टॉक 375 80 150 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 20,000, 2,64,444 ए क्लोजिंग स्टॉक। आ गया क्या? समझा क्या? थैंक यू। हो गया तुम्हारा। अभी इसमें टेस्ट योर नॉलेज में जो भी है सॉल्व करो। उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन में दिया है 9 10 11 12 13 14। यस, 5-6 क्वेश्चन है, वो दिल से सॉल्व करो। कोई डिफिकल्ट रही मेरे को कल पूछो। तुमने पीपी की डिफिकल्टीज पूछे नहीं, अगले लेक्चर को पूछो। लगा तो अपन उसको भी रिकॉर्ड कर लेंगे, डिफिकल्टी सॉल्विंग सेशन ऑन पीपी एंड इन्वेस्टमेंट। कोई तकलीफ? श्योर? तो पीपीए के अगर 2 4 5 क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगते हो तो बोलो, वो सॉल्व करता अगले लेक्चर को। और
इसके कुछ लगते हैं तो बोलो, ये भी कर देता। आज इवनिंग का जो भी रहेगा सेशन, उसमें अपन ये डिफिकल्टी सॉल्विंग सेशन शूट कर लेंगे। अब तक अपन डिफिकल्टी सॉल्विंग सेशन शूट नहीं किया कोई भी, ऐसे ही सॉल्व किया, तो आज सेशन पूरा शूट कर लेंगे, क्योंकि पहला इतना डिफिकल्टी लेवल था नहीं, सब थेरोटिकली थे, प्रैक्टिकल कुछ था नहीं ज़्यादा। अभी पीपीए से टफ प्रैक्टिकल चालू हो गया है। सो अभी जो भी डिफिकल्टी सॉल्विंग सेशन रहेगा दैट विल शूट, यस और नो, उसका भी शूटिंग कर लेंगे, क्योंकि तुमको डिफिकल्टी आ रहा है तो बच्चों को भी आएगी। इसके पहले के डिफिकल्टी चिल्लर थे, उसमें कुछ दम नहीं था, सब थेरोटिकली पार्ट था, लेकिन अभी प्रैक्टिकल है पीपी से लेके, सो अपन वो कर लेंगे, कोई दिक्कत। फिर अगला लेक्चर रहेगा डिफिकल्टी सॉल्विंग वाला, और उसके बाद अपन क्या सॉल्व करेंगे बेटा, अगला बोरोइंग कॉस्ट, ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, थैंक यू, बाय।